तो लेट्स कंटिन्यू। 12th क्वेश्चन करना है हमें। विल स्टार्ट विद द 12th क्वेश्चन। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. प्रेजेंट एज ऑफ रवि को लेते हैं हम ए ईयर्स। एज ऑफ रवि आफ्टर 15 years is a plus 15. ओके, तो 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. So a plus 15 will be 4 times a. जब ऐसे इक्वेशन आएगा तो जिस साइड में वेरिएबल का कोएफिशिएंट बड़ा है उसको लेफ्ट साइड में लेता हूं मैं। तो मैं इसमें साइड्स अदली बदली कर रहा हूं, देखो कैसे। 4a इक्वल टू a प्लस 15। अभी सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम बोथ साइड्स। सो व्हाट डू आई गेट? 4a माइनस a is a plus 15 minus a. So 3a is 15. अभी divide by a on both sides. तो 3a अपॉन a, 3a अपॉन 3 डिवाइड बाई ए नहीं, डिवाइड बाई 3 है, सॉरी। डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स इज 15 अपॉन 3। a इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज? 5 years। ये है आपका आंसर। ओके, 4 क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज के। बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, let the rational number be n. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2, n into 5 by 2, and add 2 by 3 to the product, you get 7 by 12. What is the number? देखो ये ऐसे इक्वेशन बना, 5n by 2 plus 2 by 3 is 7 by 12। इसमें क्या हुआ? 3 नंबर है, 2, 3 और 12, और 2 और 3 का एलसीएम, 2, 3 और 12 का एलसीएम क्या है? 12। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है। तो अभी क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12। सो 12 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 12 इंटू 2 बाय 3 is 12 into 7 by 12। 3 4 are 2 6 are 6 5 are 30। 30n plus 8 is 7। ओके, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 by 2, मल्टीप्लाई 5 by 2 एंड ऐड 2 by 3 टू द प्रोडक्ट, यू गेट माइनस 7 by 12 है यहाँ। माइनस 7 by, ये माइनस साइन है ना, वो प्रिंट में यहाँ पे दब गया था। यू गेट माइनस 7 by 12। तो 30n के बाजू में 8 है, क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड्स। सो आई गेट 30n plus 8 minus 8 is minus 7 minus 8. So I get 30n is minus 15. अभी divide by 30
ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा 30n/30 is minus 15/30. So what is n? Minus half. This is the answer. Let's look at the next question. Question number 14. क्या है question number 14? Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination 150 and 10 respectively. Denomination वाला question, तो denomination quantity और denomination quantity और money या amount in rupees. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination 100, 50 and 10. Denomination कितना है? ₹100, ₹50, ₹10. ठीक है. Respectively, the ratio of the number of these notes is 2:3:5. तो इसका quantity कितना है? 2x, 3x and 5x. तो मनी कितना हुआ? 100 into 2x मतलब 200x. 50 into 3x मतलब 150x. 10 into 5x मतलब 50x. Total cash with Lakshmi is 4 lakh rupees. How many notes of each denomination does she have? Total cash कितना है? Total money 200x plus 150x plus 50x which is 400x. लेकिन वो कितना है? 4 lakhs. तो 400x is equal to 4 lakh. Divide by 400 on both sides. Divide by 400 on both sides. So 400x upon 400 is 4 lakhs upon 400. So ये होगा 1000. ठीक है. 401. Okay. How many notes of each denomination does she have? तो 100 रुपीज के कितने? 2x. 2x मतलब 2 into 1000, 2000 notes. ओके. 2000 into 100 कितना होगा? एनीवे 2000, 20,000 2 lakhs. तो 100 रुपीज में ही 2 लाख चलेगा. 50 रुपए के 3x मतलब 3000 नोट 50 रुपए के. 5 3 are 15, 15,000 1.5 लाख. तो 2 लाख और 1.5 लाख, 3.5 लाख यहीं पे हो गया. और 100 रुपए के 5 into 1000 5000. 5000 पे 10 रुपए के, सॉरी नॉट 100, 10 रुपए के 5000 नोट्स. तो 5000 इंटू 10 50,000. तो ये हो गए उसके पास 4 लाख. मतलब मैंने वेरीफाई कर लिया, मेरा आंसर भी सही आ गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं यहीं पर. क्वेश्चन नंबर 15. I have a total of 300 in coins of denomination 1, 2 and 5. Denomination same. टेबल बनाओ, लाइफ इजी. Denomination, quantity, amount in rupees. I have a total of rupees 300 in coins of denomination 1, 2 and 5. Rupees 1, rupees 2, rupees 5. The number of 2 coins is 3 times the number of 5 coins. अगर 5 के coins मेरे पास f है
तो 2 के कॉइन्स है 3f. The number of 2 coins is 3 times the number of 5 coins. The total number of coins is 160. Total number of coins कितने हैं? टोटल कॉइन्स कितने हैं मेरे पास? 160. तो 1 रुपये के कॉइन कितने होंगे? 160 माइनस 3f प्लस f, मतलब 160 माइनस 4f. f क्या है? 5 रुपये के कॉइन्स. ठीक है. हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी? तो अमाउंट कितना है? 1 रुपये का अमाउंट कितना है? 1 इंटू 160 माइनस 4f विच इज 160 माइनस 4. ये है 2 इंटू 3f मतलब 6f. ये 5 इंटू f मतलब 5f. ठीक है. तो ये हो गए मेरे पैसे. लेकिन पैसे कितने टोटल? 300 रुपये. टोटल मनी कितना है मेरे पास? 160 माइनस 4f प्लस 6f प्लस 5f. लेकिन ये कितना है मेरा? 300. एक बार देख लेते. 300 ये रुपीज 300. ठीक है. तो ये कितना हुआ? -4 प्लस 6 2. ओके. और 5 प्लस 2 7. तो 160 प्लस 7f इज 300. सो 7f प्लस 160 इज 300. तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 160 फ्रॉम बोथ साइड्स. So 7f plus 160 minus 160 is 300 minus 160. So what is 7f equal to 140? अभी divide by 7 on both sides. So I get 7f upon 7 is 140 upon 7. So I get f is equal to 20. तो 5 रुपए के कॉइन कितने हैं? 20. 2 रुपए के 3f. टोटल कॉइन्स 160. तो ये दो 80 हो गए. तो ये कितने होंगे? 80. ठीक है. पैसे कंपेयर कर लेते हैं. 81 रुपए के कॉइन्स है तो 80 रुपीज होंगे. 62 रुपीज के कॉइन्स है तो 120 रुपीज होंगे. ये 200 हो गए. 5 रुपए के कॉइन 20 है तो ये 100 हो गए. तो ये 300 रुपए हो गए. दिस टेक्स. Okay. So coming to the last question of this section. That is question number 16. Okay. तो क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 16? The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100. जो विनर है उसको प्राइज मिलेगा ₹100. And participant who does not win gets a prize of ₹25. तो पार्टिसिपेंट को कितना मिलता है? ₹25. लेकिन वो कैसा चाहिए? Who does not win. ठीक है. टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000. ओके. टोटल प्राइज मनी जो दिया वो कितने पैसे दिए? 3000. फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स. टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63. टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? 63. अभी सपोज इसमें से W है. W इज नंबर ऑफ
विनर्स। तो इनको पैसे कितने मिलेंगे? 100 रुपीज ईच। तो 63 माइनस डब्ल्यू है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन। समझा? ठीक है। तो विनर को पैसे कितने मिले? 100 रुपीज ईच। तो 100 इंटू विनर के पैसे प्लस 25 इंटू नॉन विनर्स के पैसे। कितने पैसे हुए टोटल? 3000। ये इक्वेशन बन गया। तो 100W प्लस 25 इंटू 63 माइनस डब्ल्यू इज 3000। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट वी लुक एट अ वेरी सिंपल मेथड। 100 को लिखते हैं हम 25 इंटू 4 इंटू डब्ल्यू प्लस 25 इंटू 63 माइनस डब्ल्यू प्लस ये 3000 जो है इसको यहाँ पे 30 इंटू 100 अगर लिखा होता तो दिस बिकम्स 30 इंटू 25 इंटू 4। 30 इंटू 25 इंटू 4। अभी क्या कर रहा हूँ मैं? डिवाइड बाय 25 on both sides. So 25 into 4 into W upon 25 plus 25 into 63 minus W upon 25 is 30 into 25 into 4 upon 25. वन जा वन जा वन जा। तो इक्वेशन मेरा कितना सिंपल बना? 4W प्लस 63 माइनस डब्ल्यू इज 30 इंटू 4 120। तो 4W माइनस डब्ल्यू कितना हुआ? 3W प्लस 63 इज 120। तो अभी मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट 63 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा मुझे? 3W प्लस 63 माइनस 63 is 120 minus 63. So 3W is equal to 57. Divide by 3 on both sides. Divide by 3 on both sides. So what do I get? 3W upon 3 is 57 upon 3. So W is equal to 19. तो विनर कितने हैं? 19. फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। 19। अभी देखो मैंने W लिया था वेरिएबल विनर्स के लिए, तो मुझे इजीली पता चल गया कि W मतलब 19 मतलब विनर्स है मेरे 19। ओके। तो अगर मुझे टैली करना है तो विनर है मेरे 19, तो बाकी के कितने हुए? 63 माइनस 19, 13 माइनस 9 4, 44 बराबर 5 माइनस 1 4, 44 हो गए बाकी के। तो इनको कितने पैसे मिले? 1900। और इनको 44 इंटू 25 विच इज 4 इंटू 11 इंटू 25 विच इज 100 इंटू 11 विच इज 1100। तो टोटल पैसे मिले 3000। ये मेरा आंसर करेक्ट। दिस इज द वे टू वेरीफाई वेदर द आंसर इज करेक्ट। ओके। तो इस मोड पे इस पोजीशन पे एट दिस स्टेज विल कंप्लीट दिस लेक्चर। ठीक है। एक छोटा सा लेसन का एक छोटा सा एक्सरसाइज, इट टुक 1.5 hours। ओके फाइन। So see you with the next exercise in the next video.